Very warm welcome to all the students of class 11th mathematics. My name is Ujjwal and I will be going to start your chapter number 1, that is sets. First of all, we will try to understand what we are going to talk about the chapter and what we are going to study in this specific chapter, as well as what is the meaning of sets. ये सेट्स है क्या चीज. सपोज क्लास 11th A is having 50 students in the class and we are trying to make group of 10 people each. We are going to make certain groups such that each group is having 10, maximum 10 students. So what will be the criteria of selecting the students for a specific group? So criteria I have established. The first group I have named group A, group B, group C, group D and group E. For this particular I have selected students in group A like Ashok, Anil, Ajay, Abhishek, Anuj, Akash. In group B I have selected the students like Sanjay, Surendra, Shankar, Shan, Sonu. In group C I have selected the students. Their names are Mahendra, Manoj, Mukesh, Malay, Monu, Mahesh and suppose 2 more. So what I am doing, I am just making the group of students, group A, group B and group C. एक खास क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे ले रखा है ग्रुप बनाने का. क्राइटेरिया कुछ भी कॉमन हो सकता है, जैसे हम परसेंटेज मार्क्स को ले सकते हैं. 85 से 95% मार्क्स पाने वालों का एक ग्रुप, 75 से 85% मार्क्स पाने वालों का एक ग्रुप. परसेंटेज मार्क्स के ऊपर हम बेस्ड कर सकते हैं. हम ये भी कर सकते हैं कि मैथ्स में जो बहुत अच्छे हैं उनका एक ग्रुप, इंग्लिश में जो बहुत अच्छे हैं उनका एक ग्रुप, हिंदी में जो बहुत अच्छे हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, फिजिक्स में जो बहुत अच्छे हैं उनका एक ग्रुप बना दिया. What I did here, I have taken their names, the first alphabet of their names, that is group A is representing those students which are having their names starting with alphabet A. Ashok, Anil, Ajay, Abhishek, Anuj, Akash. ग्रुप बी में हमने उन स्टूडेंट्स को रखा हुआ है जिनके नाम एस से शुरू होते हैं. संजय, सुरेंद्र, शंकर, शान, सोनू एंड 2-3 more. Their name also starting with alphabet S. ग्रुप सी महेंद्र, मनोज, मुकेश, मलय, मोनू, महेश एंड 2-3 more. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन है. यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट्स, उनके नाम के अल्फ़ाबेट्स को कॉमन रखा हुआ है. आप उनके फेवरेट सब्जेक्ट के हिसाब से ग्रुप बना सकते हैं. आप उनके परसेंटेज मार्क्स के आधार पर ग्रुप बना सकते हैं. आप उनके हाइट के हिसाब से ग्रुप बना सकते हैं. तो द काइंड ऑफ ग्रुप विच इज हैविंग showing something in common between the members of the group is known as set. ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जिसमें जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी और कुछ ना कुछ कॉमन चीज है. अगर इस तरह का कोई ग्रुप हमारे पास में है
तो हम उसको कहेंगे सेट है। यानी कोई ऐसी चीज, यूनिक सी चीज ग्रुप के मेंबर्स में कॉमन अगर हमें मिल गई तो हम उस ग्रुप को कहेंगे कि भैया ये हमारा जो है अल्फाबेट्स का सेट है, नेम्स का सेट है विच आर स्टार्टिंग विद ए। ये उन स्टूडेंट्स का सेट है जिन्होंने 85 से 95% मार्क्स ऑब्टेन किए। ये उन स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिनको हिंदी बहुत पसंद है, जिनका फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है या जिनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। मैंने यहाँ पे जो ग्रुप बनाया हुआ है, पहला ग्रुप उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका नाम अल्फाबेट ए से शुरू होता है, देयरफॉर इट इज अ सेट। एक चीज उनमें कॉमन है, क्या कॉमन है? देयर नेम्स फर्स्ट अल्फाबेट। So according to the definition, come on to the sets. Set is a well-defined collection of objects. अशोक, अनिल, अजय, अभिषेक, अनुज, आकाश ग्रुप ए के मेंबर्स हैं। They are known as objects. Similarly, संजय, सुरेंद्र, शशांक, शान, सोनू and 2-3 more. They are the members of group B. They are also known as objects. Mahindra, Manoj, Mukesh, Malay, Monu, Mahesh and 2-3 more. They are the members of group C. Their names are starting with alphabet M and these are the objects for group C. So a well-defined collection of objects. See this line, which are having something common. Which are having something in common is known as set. समथिंग इन इस कॉमन का मतलब इट मे बी एनीथिंग, देयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, उसके आधार पे हम ग्रुप बना दिया, देयर फेवरेट सब्जेक्ट, देयर नेम्स फर्स्ट लेटर, देयर एरिया इन विच दे लिव, कुछ भी उनका हैबिट के आधार पे ग्रुप बनाया हुआ है। तो अगर किसी ग्रुप के मेंबर्स में कोई चीज कॉमन है तो उस ग्रुप को हम सेट बोलेंगे। Set is a well-defined collection of objects which are having something in common is known as set. Now here I'm going to tell you that set is made up of two things. Set is made up of two things. The first, name of the set. Name of the set. Sets are represented with capital letters of English alphabet like set A, set B, set C, set X, Y, Z, कुछ भी आप रख सकते हैं, but it should be in capital letter. Like this is set A, set B, set C. And the other one is members of the set. Members of the set. कौन कौन? अभी आपने फर्स्ट ग्रुप देखा था, आकाश, अनुज, अनिल, अनुपम, अनूप, जो लोग भी थे वो सेट ए में रखे हुए थे। They are known as the members of the particular set. And these members are known as elements. अब से हम लोग उनको मेंबर्स नहीं बोलेंगे, अब से हम लोग उनको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, अब वो हमारे लिए उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट हो गए। तो सेट हमारा दो चीज़ों से मिलकर के बन रहा है। द फर्स्ट थिंग इज नेम ऑफ द सेट एंड द अदर वन इज मेंबर्स ऑफ द सेट. Set A, set B, set C, these are the names of the set and the names of the set will always be represented as a capital letter of English alphabet. A से लेकर के Z तक में आप कुछ भी रख सकते हैं और उस सेट के जितने भी मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स हैं they are known as elements of the particular set. Now for a little example, there is a set A which is A, E, I, O and U. पहचान रहे होंगे आप उनको? A, E, I, O, U इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं।
हमने रिप्रेजेंटेशन आपको बताया, दिस इज द नेम ऑफ द सेट, सेट ए, एंड दीज आर द मेंबर्स, दे आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए. एंड व्हाट आर दीज आर द वोवेल्स. इनमें क्या कॉमन है? इनमें कॉमन चीज ये है कि ये सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू. रिप्रेजेंटेशन करने जाएंगे किसी सेट का, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है. सेट ए इज हैविंग एलिमेंट्स ए, ई, आई, ओ, यू. डेफिनेशन में हम लोगों ने बात किया था कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स which are having something in common. What is the thing common between these 5 elements? So sir, these 5 elements are representing a same group, a same class, that is the vowel class of English alphabet. इसलिए इनको एक साथ रखना उचित है. अगर ऐसे elements जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो वो साथ साथ रखे हो, हम उनको सेट नहीं कहेंगे. सेट कहने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए. अगर कॉमन नहीं है देन वी विल नॉट गोइंग टू से दैट इट इज अ सेट. बट हियर सेट ए इक्वल्स टू ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. और इनमें कॉमन क्या है? दे ऑल आर द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. तो ये चीज इनमें कॉमन है, इसलिए इसको हम एक सेट कह सकते हैं. सिमिलरली 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Is it a set? Set A is having elements 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. क्या ये सेट है? नहीं ना. कुछ भी एक सीक्वेंस में नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई ऑड है, कोई इवन है. जी नहीं, ये सेट है. इट इज द सेट ए विच इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 20. मैक्सिमम कितना है? 19. गौर से देखिए, 2 is a prime number, 3 prime number, 5, 7, 11, 13, 17, 19, all are prime number and all are less than 20. तो हमने इनके बीच में एक कॉमन चीज ढूंढ लिया और कहा कि नहीं सर ये तो सेट है. इट इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 20. या आप ये भी कह सकते हैं कि 0 से लेकर 20 के बीच के प्राइम नंबर्स का सेट है ये. तो एक चीज में कॉमन मिल गई, हमने कह दिया हाँ भाई इट इज अ सेट, ये सेट है. नाउ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स. एलिमेंट्स जैसा कि मैं बात कर रहा था, 2 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, 3 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट बी, 5, 7, 11, 13, 17 and 19 is a element of set A. Now we are going to talk about a symbol over here. This is the symbol. This symbol means that belongs to. Belongs to, that means अगर हमको इस सेट को वर्ड्स में लिखना हुआ तो what we will say? 2 belongs to set A. 5 belongs to set A. 11 belongs to set A. 13 belongs to set A. 19 belongs to set A. 2 belongs to set A. That means 2 जो है वो set A का एलिमेंट है. 5 belongs to set A. 5 set A का एलिमेंट है. 11 belongs to set A. 11 set A का एलिमेंट है. Similarly 13 belongs to set A. That means 13 set A का एलिमेंट है. 19 belongs to set A. 19 set A का एलिमेंट है. This symbol stands for
belongs to. We will be using few more symbols over here. Like if I have written n over here, n क्या चीज है? It is a set of natural numbers. हम लोग क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं. n means natural numbers. अगर कहीं पर z लिखा हुआ है तो it is a set of integers. It may be negative, may be positive. कहीं पर r लिखा हुआ है तो set of real numbers. कहीं पर q लिखा हुआ है तो सिंबल q stands for set of रेशनल नंबर्स. थोड़ा सा और आगे चलते हैं. वी आर हैविंग z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. अब हम यहां पे z प्लस लगाए हुए हैं तो कहा जा रहा है कि इट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. सिमिलरली r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स. सिमिलरली प्लस लगा दिया q के साथ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. सो दिस इज द फर्स्ट symbol we have studied in this particular chapter, which stands for belongs to. That means 5 belongs to A. क्या मतलब हुआ इसका? 5 सेट A का एलिमेंट है. इन अल्फाबेट्स का सिंबल्स का क्या मतलब है? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. अगर सब में प्लस लगा हुआ है तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन करेंगे. Now we have just talked about the properties of set. Number 1, the elements, all elements should have something in common. Number 2, all elements should be kept within braces. That means curly brackets, and separated by commas. डन. क्या बोला इन्होंने? सेट A इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट में रखना चाहिए, और सेपरेटेड बाय कॉमर्स A, E, I, O, U. All the elements should be kept within the braces. कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में होना चाहिए. और दूसरी चीज, all the elements should be separated by कॉमर्स, उनके बीच में कॉमा लगा होना चाहिए. अब बात आती है कि हम अपने सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सेट. ये दो प्रॉपर्टी हो गई और उस प्रॉपर्टी के आधार पे ये हमने अपने सेट को रिप्रेजेंट कर रखा है. Now we will be talking about
types of sets. So here we will be having two type of sets. रिप्रेजेंटेशन के आधार पे हम कहेंगे कि हमारे पास दो तरह के सेट होते हैं. द फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. द सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. देखिए, इसके अलावा भी हमारे पास और तरह के सेट्स हैं, बट फर्स्ट वी शुड बी गेटिंग इनटू द फ्यू थिंग्स, जहां पे हम ये पहचानना जान लें कि दिया गया क्वेश्चन से कोई सेट बन रहा है या सेट नहीं बन रहा है. ठीक है, उसके बाद हम लोग रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म या फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि अगर आपके बुक के कुछ एग्जाम्पल्स में जाएं कि ये सेट है या नहीं है, तो आपने जैसे बताया था, नंबर 1, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स. ये सेट है या नहीं है? ये है, यस. क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए वॉवेल है वही चीज़ आपके लिए भी वॉवेल है, वही चीज़ किसी और के लिए भी वॉवेल होगा. अगर नंबर 2 की बात करें, 5 फेमस पॉलिटिशियन इन इंडिया या 5 फेमस क्रिकेटर्स. ये सेट है या नहीं है? देखिए, 5 फेमस पॉलिटिशियंस इन इंडिया में अगर आप जाओगे, थोड़ा सा डीप स्टडी इस टॉपिक का करिए, तो आपको मालूम चलेगा कि कोई पॉलिटिशियन नॉर्थ इंडिया में फेमस है, कोई यूपी में बहुत फेमस है, कोई तमिलनाडु साइड में बहुत फेमस है, कोई महाराष्ट्र में कोई फेमस है. ऐसा हमें बहुत कम या रेयर मिलेगा कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो पूरी इंडिया भर में फेमस हो. तो थोड़ा सा मुश्किल हमें आएगा 5 फेमस पॉलिटिशियन का सेट बनाने में, क्योंकि हो सकता है कि जो मेरा फेवरेट हो, जो मेरे लिए फेमस हो, वो आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए वो फेवरेट ना हो और कुछ लोगों के लिए वो फेमस ना हो. यही चीज़ यहाँ पर आएगी 5 फेमस क्रिकेटर्स या 5 फेमस राइटर्स. जो हमारे लिए फेवरेट है, जो हमारे लिए फेमस है, वो हो सकता है आप लोगों के लिए फेमस ना हो, या आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए फेमस हो, कुछ लोगों के लिए फेमस ना हो. तो जहाँ पे सभी के लिए एक कॉमन पॉइंट नहीं मिल जाता कि हाँ ये फेमस है क्रिकेटर या पॉलिटिशियन, वहां पे हम तब तक उसको सेट नहीं कहेंगे. नंबर 4 पे चले जाइए. नंबर 4, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स. ये सेट है या नहीं है? सर जी, ये पूरे वर्ल्ड के लिए सेट है, नॉट ओनली इन इंडिया, बट इट इज अ सेट फॉर द एंटायर वर्ल्ड. व्हाई? आई एम इन इंडिया. सेट ए इज रिप्रेजेंटिंग 2, 3, 5, 7, 11. हम रशिया में भी चले जाएं तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स यही होंगे. हम अमेरिका में जाएंगे, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स यही होंगे. हम जापान चले जाएंगे, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स यही होंगे. हम तमिलनाडु भी जाएंगे, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स यही होंगे. दैट मीन्स कॉमन, something is common between these numbers in the entire place, therefore it is a set. लेकिन यहाँ पे जहाँ पे फेमस वर्ड आ जाता है, फेवरेट आ जाता है,
वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है हमको ये डिसाइड करने में कि ये सेट बनाएगा या सेट नहीं बनाएगा। ज़्यादातर समय पर जब भी हम ये देखते हैं कि फेमस या फेवरेट वर्ड आ रहा है सेंटेंस में, तो वहाँ पे सेट बहुत रेयर केसेस में बनता है, ज़्यादातर समय नहीं बनता। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल ओवर फॉर टुडे। ऑन टुमारोज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ सेट। मैंने यहाँ पे 2 के नाम लिख रखे हैं, इनके अलावा इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, नल सेट है, एम्प्टी सेट, नल सेट जिनको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, तो बहुत सारे अन्य सेट भी हैं, बट दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम ज़्यादातर सेट का रिप्रेजेंटेशन इन्हीं 2 फॉर्म में करेंगे। सो गो थ्रू योर बुक्स, वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू टुडे, प्लीज गो थ्रू एंड गेट the examples like this and try to find out whether these are making set or not. By the time, see you all tomorrow. Stay home and stay safe. Have a nice time.